ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله يا الله تعالى আমাদেরকে পবিত্র জুমার দিনে আল্লাহর ঘর মসজিদে জমা হওয়ার সুযোগ সময় করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যদি দুইটা কাজ তোমরা খুব গুরুত্ব সহকারে করবে যেমন আল্লাহ তাআলার কাছে যা আছে ওটার ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে চেয়ে নিবে এতে আল্লাহ তাআলা খুশি হয় আল্লাহর কাছে চাইবে তো আল্লাহ তাআলা খুশি হয় আর যদি আল্লাহ তাআলার কাছে না চাও মাল্লাম ইয়াদু আল্লাহ ইয়াগদু লাহু যে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে না চায় না আল্লাহ তাআলার কাছে কান্নাকাটি করে না আল্লাহ তার প্রতি নারাজ হয় রাগান্বিত হয় এজন্য আল্লাহর কাছে চাইবে এটা আল্লাহ তাআলার শান আল্লাহর কাছে দোয়া করবে কান্নাকাটি করবে আল্লাহর গুনার জন্য আফসোস করবে রিজিকের পেরেশানি থেকে মুক্তি চাইবে সমস্যা থেকে মুক্তি চাইবে রোগ থেকে সুস্থতা কামনা করবে এটা আল্লাহ পছন্দ করে এজন্য আল্লাহ আপনাকে মাঝে মাঝে একটু সমস্যা দেয় যে দেখি আল্লাহ তাআলা বান্দা আমাকে ভুলে গেছে দোয়া করে না কনজুস হয়ে গেছে বখিল ওইটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট বখিল আল্লাহর কাছে দোয়া করে না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুরূদ প্রেরণ করে না এরা বখিল বলতেছে আল্লাহ মাঝে মাঝে একটু পরীক্ষা করে দেখি বান্দা আমার কাছে দোয়া করতে ভুলে গেছে একটু টেনশন দেই একটু পেরেশানি দেই তাহলে না বান্দা আমার দিকে একটু ফিরে আসে আমার কথা মনে পড়ে একটু কান্নাকাটি করে দোয়া করে আর আমি খুশি হয়ে বান্দার সমস্যাগুলোর সমাধান করে দিই সুবহানাল্লাহ দুনিয়ার মানুষের নীতি হইতেছে মানুষের কাছে চাইবেন তো মানুষ একবার দিবে দুইবার দিবে তৃতীয়বার আপনার তার মুখের দিকে তাকাইতে পারবেন না যে বলবে কিরে ভাই একবার দিয়ে অপরাধ করছেন বারবার আসো মানে একবার বেশি দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার চাইলে মানুষের দরবারে বেশি সময় গেলে মানুষ দরজাও খোলে না এটা রাজার দরবারে হোক
বাপ মার দরবারে হোক, তার কাছে বেশি বেশি চাইবেন। বাবা মাও রাগ করে বসে, এত চাও কেন লেগা, এত সমস্যা কি, বারবার খালি চাইতেই থাকো, দিতেছি তো চাইতেই থাকো। এটা দুনিয়ার মানুষের একটা তারবিয়াত। মানুষ বেশি চাইলে মানুষ রাগ করে। আর আল্লাহ তাআলার কাছে একটা আল্লাহ তাআলার তারবিয়াত হইতেছে, মানুষ যত চাইবে আল্লাহ তাআলা তত খুশি হয়। মানুষ যত চায় তত খুশি হয়। হেদায়েত চাও, আল্লাহুম্মা ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। শিখাই দে বান্দারে, আল্লাহ শিখাইতেছে, বান্দা তুমি চাও যে আল্লাহ এমন রাস্তা তুমি আমাকে দেখাও, যে রাস্তার উপরে যারা চলেছিল তারা হেদায়েতের উপরে জান্নাতে পৌঁছে গেছে। এমন রাস্তা তুমি আমাকে দেখাও না মালিক, যে রাস্তার উপরে চলনেওয়ালারা গুমরা হয়ে জাহান্নামে চলে গেছে। শিখাই দে আল্লাহ তাআলা, বান্দা চাও। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা রিজকান হালালান তাইয়িবান ওয়া বারিক লানা ফীহি। আল্লাহ নবী বলতেছে, তোমরা আল্লাহর কাছে রিজিকের দোয়া করো, আল্লাহ আমাকে হালাল রিজিক দাও, এটার মধ্যে বরকত দাও। রিজকান তাইয়িবান, হালাল পবিত্র রিজিক দাও, বরকত সহকারে দাও। বরকত কি? অল্প আছে কিন্তু শেষ হয় না, অল্প আছে কিন্তু চাহিদা সবার পূরণ হয়ে গেছে, এটাকে বলা হয় বারাকা। বারাকা আল বারাকাতুম মিনাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার বারাকা এরকমই, অল্পতেই সবাই সন্তুষ্ট। আর রিদা বিল কাদা, তাওহীদের একটা বুনিয়াদ হচ্ছে, আকীদার একটা মূল বিষয় হচ্ছে তাকদীরের উপরে বান্দা সন্তুষ্ট থাকবে। বান্দার কাছে যা অবস্থা আসে বান্দা এই অবস্থায় সন্তুষ্ট। हर हालत में अल्लाह की शुक्र करना, ये बंदा की एक सबसे अहम चीज़ है। जो बंदा अपने पास जो चीज़ है इस पर खुशी है, खुश है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह तेरी तारीफ है, तू जिस हालत में रखा है हम खुश है। এটা বান্দার একটা তরবিয়ত। আর রিদা বিল কাদা, তাকদীরের উপরে সন্তুষ্ট। আর তাকদীরের উপরে অসন্তুষ্ট তো পেরেশানি। তরকারিতে ভালো না, লবণ হয় নাই, বউটা কালো, বাচ্চা কথা শোনা না, ব্যবসায় মন্দা, টাকা হারায় গেছে, রোগ বিরোগ, সমস্যা, একটার পর একটা সমস্যা লাগিয়ে রয়েছে। সে শুধু বলে আল্লাহ, সমস্যাই তো কাটে না, সমস্যাই কাটে না। কি এক বেজালের মধ্যে বললাম, আল্লাহ খালি সমস্যার পর সমস্যা দিতেই আছে। তুমি বুঝো না বান্দা, আল্লাহ তোমাকে পরীক্ষা করতেছে। চাকরি নাই, ইনকাম নাই, ঘরে খাবারের অভাব, অসুস্থ, পরীক্ষা। দুনিয়াতে বান্দাকে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা দিয়ে আল্লাহর দিকে ডাকে যে বান্দা আসো, ফাফিরু ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে ফিরে আসো, দৌড় লাগাও, আল্লাহর দিকে দৌড় লাগাও, আল্লাহর দিকে ফিরে আসো। বান্দা একটু পরীক্ষা দিলাম, ফিরে আসো। ঈমানদারের জন্য দুনিয়াটা একটা পরীক্ষা। গত জুমায় আমি মুনাফিকের ব্যাপারে কিছু আলোচনা করছিলাম। মুনাফিকের দীর্ঘ আলোচনা দরকার, কিছু সামান্য বিষয় বোঝানোর চেষ্টা করছি। মুনাফিকের আরো কিছু ধরন আছে, এখানে আমি জমা করছিলাম। যেমন মুনাফিকরা চায় মানুষের মধ্যে, মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করা। আর মুনাফিক, যারা মুনাফিক তারা চায় বান্দা মুসলমানের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হয়ে যাক। ওয়াহাবি, সুন্নি, বেরলভি, শিয়া, কাদিয়ানি, আহলে হাদিস, সালাফি, বিভক্তি হয়ে যাও। তোমার মসজিদ ওইটা, এখানে সুন্নিরা আসতে পারবে না। लानत है मुसलमान पर कि मुसलमान अपनी मस्जिद को भी तकसीम करके अलग अलग नाम रख दिया। वहाबी मस्जिद, सुन्नी मस्जिद, शिया मस्जिद, आले हदीस मस्जिद। अस्तगफिरुल्लाह। एक ऐसा ज़माना है हमारे है कि भाई हम मस्जिद को भी तकदीम कर, दीन को भी तकसीम कर लिया कि भाई ये दीन हमारा है, और जो है ना वो हमारे दीन से, हमारी मसलाक से उनकी कोई परेशानी है तो ये हमारी है ही नहीं है।
लैसा मिन शैइन, ये हमारे जमात में ही नहीं है, वो गुमराह है, वो काफिर है, वो जहन्नम में जाने वाला है। कौन जा रहा है जहन्नम में? कोई मुसलमान जिसको जहन्नम में भेजने के लिए उसको सर्टिफिकेट मिल गया, बस हो गया, मुफ्ती साहब मदरसे से फारिग है, लिख दिया, भला काम करने वाला जहन्नमी। जो नबी को नूर नहीं मानता वो जहन्नमी, जो नूर मानता है वो भी जहन्नमी। दोनों जमात अलग अलग फतवा जारी कर दिए। जो मानता है एक जमात बोलते हैं, जो नहीं मानता वो जहन्नमी, और जो बोलते हैं मानते हैं वो भी जहन्नमी। जन्नत में कौन जाएगा ये बताओ? सब तो गया जहन्नम में, भाई जन्नत में कौन जाएगा? मुनाफिक जाएगा जहन्नम में, जन्नत में? अरे मुनाफिक तो चाहता ही था यही है कि भाई तुम्हारे अंदर तूर पैदा हो जाए। मुनाफिक ये काम पहले भी करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी है। कुछ मुनाफिक होते थे जासूस बन के, जासूस ही करते थे कि मुसलमान के अंदर की बात जो है रोम में ट्रांसफ़र कर दो, वहाँ की जो सदर है उनके पास ये बात चला जाए कि मुसलमानों के अंदर क्या क्या चल रहा है, कि कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, वो काफिर के पास ट्रांसफ़र कर रहा था, जासूसी कर रहा था। तो उन्होंने एक मस्जिद बनाया, और मस्जिद दिरारा, इसको कहते हैं मस्जिद दिरारा, यानी गंदा मस्जिद, कुफर के ऊपर रहने वाला निफाक की मस्जिद, वो मस्जिद बनाया। इब्न कसीर रहमतुल्लाह लिखते हैं ये मस्जिद क्यों बनाया? जो जासूसी करते हैं किस्रा और कायस में मुसलमान की बात वहाँ तक पहुँचाते हैं, वो जब यहाँ आएंगे तो यहाँ बैठा के हम उनको मेहमानदारी करेंगे, और यहाँ से मुसलमान के खिलाफ साजिश बनाएगी कि भाई अगले हमारे काम क्या होगा, हमारे अगले काम क्या होगा, हम यहाँ बैठ के मशवरा करेंगे। क्योंकि ये तो मस्जिद है, यहाँ से कोई ख़राब काम, कोई गलत काम कोई करेगा, ये तो सोच भी नहीं सकता मुसलमान के मस्जिद में आके कोई ज़िना करेगी, दुश्मनी करेगी, इस्लाम के लिए कोई साजिश करेगी, इस्लाम की पीछे यहाँ से कोई निफाकी फैलेगी, ये तो मुसलमान नहीं सोचता। कि तो मस्जिद बनाया, क्या बनाया? मस्जिद बनाया, कोई मंदिर नहीं बनाया जहाँ से मुसलमान के पीछे साजिश हो सकते हैं, मस्जिद बनाया। तो अल्लाह ताला ने इसको जाहिर कर दिया कि तुम्हारे नबी ওই যে মসজিদ বানিয়েছে, ওই যে মুনাফিকের দলেরা এখানে মসজিদ বানিয়েছে, এটা হচ্ছে মসজিদে দিরার, যেখান থেকে ইসলাম আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাজিশ করা হয়, ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়। এখান থেকে কিভাবে তোমাদেরকে পরাজিত করা যায়, কিভাবে ইসলামকে নাম নিশানা মিটিয়ে দেওয়া যায়, এই ষড়যন্ত্র করা হয়। আমার নবী এই শয়তানগুলো তোমার কাছে আসবে, এসে বলবে আয় আমাদের নবী, আপনার উম্মত আমরা, আসেন আমাদের সাহাবীদের নিয়ে আপনি ইমামতি করেন, আসেন আমরা একটা মসজিদ বানিয়েছি, আপনি এই মসজিদের মধ্যে ইমামতি করেন, আর আপনি মুফতি সাহেব হয়ে ওইখানে গিয়ে মসজিদের ভিতরে ইমামতি করবেন, আর তাদের ফেরকাকে বাহবা দিবেন, যে ঠিক আছে এইবার তোমরা কাদের কাজ করছো, সহিহ হাদিসের অনুসারী একেবারে আলাদা মসজিদ বানিয়ে দিয়েছো। নাম কি? মসজিদ আহলে হাদিস, মসজিদে সুন্নি, মসজিদে সালাফি, মসজিদে শিয়া, একেবারে তুমি ঠিক আছো। কি করছো? মসজিদ আলাদা করে দিয়েছো। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا تفريقا بين المؤمنين وارصدا لمن حارب الله ورسوله من قبل। বলতেছে যে তুই যে তারা ওই জায়গায় কিছু একটা একটু দূরে একটা মসজিদ বানিয়েছে না, এই মসজিদ সম্পর্কে আমি তোমাকে খবর দেই, আমার নবী এই মসজিদ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে খবর দেই। এটা বানানোর উদ্দেশ্য কি তা আল্লাহ তাআলা বলতেছেন। মসজিদুল দিরারা, এটা হচ্ছে কি? শয়তানের মসজিদ, বাতিলের মসজিদ, গন্দেগির মসজিদ। তাফরিকাল বাইনাল মুমিনিন, তারা চায় যে মুসলমানের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়ে যাক, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাক, মুসলমানের শক্তি নষ্ট হয়ে যাক, মুসলমানের জামাত ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে যাক, মুসলমানের কোনো নেতা না থাকুক, মুসলমানের কোনো শক্তি না থাকুক। ষড়যন্ত্রের জন্য
তাফরীকা বাইনাল মুমিনিন, এক নম্বর কাম হচ্ছে তাদেরকে তারা তোমাদের মধ্যে তুর সৃষ্টি করে দেবে। এক নম্বর काम मुसलमान के अंदर तूर पैदा करना। ওয়াইরসাদাল লিমান হারাম আল্লাহ ওয়া রাসূল, তারপরে এখান থেকে মুমিন আল্লাহ এবং রসুলদের বিরুদ্ধে এখান থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করবে। তারা যদি সময় হয়ে যায় ষড়যন্ত্র করতে 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 এক সময় এখান থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে। এবং পূর্বে যারা ইরসাদাল লিমান হারাম আল্লাহ ওয়া রাসূলুহু মিন ক্বাবলি, পূর্বে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত তাদেরকে এখানে আশ্রয় দিবে, আশ্রয়। কারণ এখানে তো মসজিদে অন্য জায়গায় তো এসে তারা জায়গা পাবে না, হয়তো মুনাফিক নয়তো কাফের, এই জন্য তারা ওইখানে জায়গা পাবে না। এই জন্য এটা তারা বানাইছে, এখানে তোমাদেরকে জায়গা দেবে। ওই সমস্ত মুনাফিকদেরকে, ওই সমস্ত কাফেরদেরকে ওইখানে জায়গা দেবে, তারা থাকার জায়গা করে দেবে। ইয়াহলিফুন্না ইন্না আরাদনা ইল্লাল হুসনা, তারা কিন্তু তোমাদের কোনো মঙ্গল চায় না। তারা কি চায়? এখান থেকে তোমাদের শত্রুদেরকে তারা আশ্রয় দিবে, আর তোমাদের মুসলমানদের ভিতরে তোমাদের তোর पैदा করবে, ভেঙে চুরে তোমাদেরকে তোমাদের শক্তি নষ্ট করে দেবে, যেন তোমরা পৃথিবীতে সবসময় পরাজিতই থাকো। এই উদ্দেশ্যে তারা মসজিদ বানিয়েছে। এটা কি? মসজিদে দিরার। এটা হচ্ছে কি? বাতিলের মসজিদ, যেটা শুধু ক্ষতিকার, ক্ষতি ছাড়া কিছুই করবে না মুসলমানদের, উদ্দেশ্যই নষ্ট। মসজিদকে তারা বিভক্ত করে দিছে, আর শয়তানদেরকে তারা এখানে আশ্রয় দিবে, তোমাদের মধ্যে তোর पैदा করে দেবে, ভেঙচুরে তোমাদেরকে নষ্ট করে দেবে, তোমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব নষ্ট করে দেবে। যে ভ্রাতৃত্বের উপরে তোমার আজ পৃথিবীতে বিজয়ের সিংহাসনে বসে আছো, ওই মসজিদের উদ্দেশ্য এটাই, তোমাদেরকে যেন ওই সিংহাসন থেকে আবার ওই পায়ের নিচে নামিয়ে দেওয়া যায়। এই কিছুদিন পরে পূর্বে তোমরা জাহান্নামের আগুনের কিনারার মধ্যে ছিলে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ওই কিনারা থেকে বের করে জান্নাতের পথে পথিক বানিয়ে দিয়েছে। তারা চায় আবার যেন তোমরা ওই জাহান্নামের কিনারার মধ্যে যেতে পারো, তোমাদের ওইখানে পৌঁছাইতে পারো, এই জন্য তারা মসজিদ বানিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, লা তাকুমু ফীহি আবাদা, আমার নবী আমি তোমাকে বলছি, এই সমস্ত মসজিদের দিরার কুফরের উপরে যে মসজিদ দাঁড়িয়ে আছে, নেফাকের উপরে, এই মসজিদে তুমি কোনোদিন ইমামতি করবে না। লা তাকুমু ফীহি আবাদা, তাদের সাথে কখনো নামাজে তুমি ইমামতিতে দাঁড়াবে না। বলতেছে লা মাসজিদান উসসিসা আলা তাকওয়া, কিন্তু একটা মসজিদ আছে যারা তাকওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। মসজিদে তাকওয়া মিন আউয়ালি ইয়ামিন আহাক্কা আইয়াকুমু ফীহি রিজালুন ইউহিব্বুনা আইয়াতাতাহহারুন, ওইখানে এমন কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহকে পছন্দ করে, পবিত্রতা পছন্দ করে, তারা তাকওয়ার মসজিদ সৃষ্টি করেছিল। সর্বপ্রথম থেকে ওই মসজিদে তাকওয়া ওইখানে অবস্থান ছিল। মসজিদুল কুবা যেটাকে বলা হয়, মসজিদে কুবা, এটার পাশেই তারা আরেকটা মসজিদ বানিয়েছিল, মসজিদে দিরার। আল্লাহ তাআলা বলতেছে, আমার হাবিব কোনোদিন তুমি এই সমস্ত মসজিদের ভিতরে দাঁড়াবে না, যাও ভেঙে ফেলো এই ধরনের মসজিদকে। আল্লাহ রাসূল অর্ডার দিছে, যাও। আমার সাহাবীরা ওই যে একটা মসজিদ দেখতেছো বানাইছে, খুব সুন্দর করে লাইটিং করছে, সাজসজ্জা করছে, একেবারে পুরা দেখলে তোমাদের মন কেড়ে নেবে, ওই মসজিদটাকে ভেঙে ফেলো। কি করো? অনেকে বলে মসজিদ আবার ভাঙবো কেন? সব মসজিদ থেকে আল্লাহর দিন প্রচার হয় না। কিছু মসজিদ থেকে ওয়াহাবি সুন্নি প্রচার হয়, কিছু মসজিদ থেকে মানুষকে শুধু বিভক্তি প্রচার করা হয়। ওই মসজিদগুলো কি করো? ভেঙে ফেলো, ওটা দরকার নাই। এই জমিনের ভিতরে এরকম মসজিদ দ্বারা কোনো উপকার হবে না ইসলামের, ভেঙে ফেলে এগুলো মসজিদ। আল্লাহর জন্য করবে, আল্লাহর জন্য, দুশ্মনী নিয়ে না। যে ভাই আমার তারা কেন সুন্নি মসজিদ থেকে কেন আহলে মসজিদ, আহলে হাদিস মসজিদ বানালো, কেন বেরলভী মসজিদ বানালো, কেন আহলে দেওবন্দি মসজিদ বানালো, ভেঙে ফেলবো, এটা এরকম না। তারা যদি আল্লাহর জন্য তাকওয়ার উপর মসজিদ নির্মাণ করে থাকে, ঠিক আছে। যদি ওইখান থেকে তুমি শিওর 100% শিওর যে ওইখান থেকে বিভক্তি সৃষ্টি করা হইতেছে, সুন্নিদের বিরুদ্ধে, শিয়াদের বিরুদ্ধে, আহলে হাদিসদের বিরুদ্ধে ওইখান থেকে ষড়যন্ত্র জাল ফেলা হইতেছে, খুতবার ভিতরে মিথ্যা প্রচার করা হইতেছে, তাহলে ভেঙে ফেলো, যাও ওই মসজিদ ভেঙে ফেলো, যেটা আল্লাহ রাসূলের জামানায় করছে। কেননা ওই মসজিদ ইসলামের কোনো বুনিয়াদ রাখে না। তারা চায় যে ওইখানে শুধু সুন্নি হোক, আহলে শিয়া হোক, নাহলে আহলে হাদিস হোক।
अरे भाई मस्जिद की शिया सुन्नी आले হাদিসের নাম লেখা আছে। আশ্চর্য দুনিয়ার মুসলমানরা, আমরা পড়ি আয়াতগুলো, আমরা পড়ি, তারপরে বলি যে আমরা তো এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত না। हम जानते हैं कि भाई आयत में बता रहे हैं कि भाई जो मस्जिद दिरार के ऊपर है, कुफर के ऊपर है, तोड़ दो उस मस्जिद को। अल्लाह ताला फरमाता है तोड़ दो। तो अल्लाह की नबी ने हुक्म किया, जाओ साहबियों तोड़ दो ये मस्जिद जो मस्जिद से निफाक ही फैलाए जा रहे हैं। आज भी हमारे ज़माने में ऐसे मस्जिद बहुत है जिस मस्जिद से सिर्फ मसलाक ही फैलाए जा रहे हैं, मुसलमान के अंदर तूर पैदा किया जा रहा है। बस मस्जिद को बनाने का एक मकसद यही है, बस हमारी जमात में आ जाओ या तो तुम जहन्नम में जाओ। सबको जहन्नम में भेजने वाला मस्जिद है वो लोग। जब ऐसे बहुत मस्जिद हमने खुतबा में देखा है, खुतबा में सीधा साधा बोल रहा है, जो हमारी जमात में नहीं है वो जहन्नम जा रहे हैं, वो जहन्नमी है, वो फला कम करने वाला जहन्नमी। एक आदमी को कुफर कहने का क्या मतलब है, काफिर कहने का क्या मतलब मालूम है? कि उसको आप जहन्नम में भेज रहे हैं। एक आदमी के पीछे काफिर की फतवा लगाने से पहले आपको यह ख्याल होना चाहिए कि यह आदमी जहन्नम में जा रहा है, क्योंकि मैंने उसको काफिर कह दिया। और काफिर किधर जाएगा? जन्नत में जाएगा। काफिर जहन्नम में जा रहे हैं और आपने इसको सीधा साधा फतवा लगा दिया, बस ये जहन्नम में जा रहे हैं, ये जहन्नमी है। बस जबान इतना कांपता भी नहीं अल्लाह के खौफ से कि एक मुसलमान के पीछे जहन्नम की फतवा लगा दिया, जहन्नमी है, सीधा बोल दिया भाई जहन्नमी है, वो काफिर है, ये फला काम करने वाला काफिर है। अस्तगफिरुल्लाह। एक मुफ्ती साहब, एक आलिम मौलाना साहब, अपनी जबान को खींच लो, क़यामत की दिन अल्लाह तुम्हारी जबान को खींच लेगी। याद रखो, इस जबान की हर एक अल्फाज की हिसाब देना पड़ेगी अल्लाह ताला के सामने। तुम्हें मस्जिद बनाने का इजाज़त इसलिए नहीं दिया कि यहाँ से तुम लोगों को जहन्नम में भेज दोगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये हमारी मुआशरा है, एक बातिली मुआशरा है जहाँ से मौलाना साहब आवाम को जहन्नम में भेज रहे हैं, उनकी इस्लाह की बात नहीं कर रहे, बस जहन्नम में जाओ, जहन्नम में जाओ। काफिर है, काफिर, मुनाफिक है, फासिक है, और ऊंची ऊंची आवाज से बोलता है कि लोग तो गुमान में, हाँ सही है, वो मुनाफिक है, वो जहन्नम में जाएगा। एक मौलाना आपको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, इसलिए नहीं दिया कि भाई मिंबर में खड़ा होकर किसी को जहन्नम में भेज दो। एक मस्जिद बनाओ और मस्जिद में जो आते हैं वो जन्नती है और बाहर जो रहते हैं सब जहन्नमी है, दूसरे मस्जिद में जाने वाला जहन्नमी है। ये फरीक है, फरीक। वला तफर्रकू, अल्लाह की नबी फरमाता है वला तफर्रकू, फरीक ना बनो, फरीक ना बनो, फरीक ना बनो। फरीक की मिसाल क्या है? फरमाता है बकरी की मिसाल है। एक बकरी की जमात है, इसमें से कुछ बकरी इधर उधर जा रहे तो शेर आके उनको खा लिया, शेर आके उनको खा लिया। क्यों? ये फरीक है, वो अपनी जमात को छोड़ के बाहर निकल गई। जमात इस्लाम में अहम चीज है, ये बात जान लो। अल्लाह की नबी फरमाता है जो जमात के साथ रहता है वो जमात हक पर है, तो इस जमात के ऊपर अल्लाह की हिदायत के हाथ है। अल्लाह अपने हाथ वो जमात के ऊपर रखा है, उनको हर परेशानी से बचाएगी। लेकिन जमात की अमीर मुखलिसिन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे जमात में जो है जन्नती और मेरे बाहर जो है सब जहन्नमी है। ये मुखलिस नहीं कहता है, ये दायूस है, ये बातिल है। ये तो लिबास में लगाते हैं, लिबास है खिजरी में आसान को फिरते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लिबास लगा के घूम रहे हैं, बस एक बच्चे पगड़े लगा रखे हैं, एक बड़ा टोपी लगा रखा है, दिखाता है कि बहुत बड़ा मौलाना साहब है, लेकिन क्या फैला रहा है? फरीक फैल रहा है, मुआशरे को फरीक बना दिया है। किसी को पीछे जहन्नम में काफिर के लक़ब लगा दिए थे। अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह के नबी फरमाता है जो काफिर नहीं है, यानी उनके काम 100% काफिर नहीं है। एक आदमी 100% काफिर कुफरी काम करता है, जानबूझ के करते हैं, तो उलमा की काम है उनके पीछे उलमा इजमा करके, एक नहीं है कि एक बस मौलाना सब बैठ के उसको काफिर फतवा लगा दी, नहीं, सारे उलमा मुहक्किक उलमा बैठेगी और इनके ऊपर तजुर्बा करेगी कि हाँ ये जो काम कर रहा है 100% कुफरी है और जानबूझ के कर रहा है, तो इनके पीछे कुफरी फतवा लगेगा। कौन? सारे उलमा बैठ के। एक आदमी का काम नहीं है,
भाई किसी ने लिख दिया बस काफिर हो गया, इनके लिए जवाब देना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है अगर तुम अपने भाई को या कुल आखा का या काफिर, अपने भाई को काफिर कह के बुला दिया, या काफिर है, काफिर, या तो ये काफिर है, या तो फला आदमी काफिर है, कह दिया ना, कहते अगर ये काफिर ना हो तो ये कुफरी अपनी तरफ वापस आएगी। इसका क्या मतलब है कि ये मौलाना साहब हो या खतीब साहब हो या कुछ भी हो, अगर किसी को ऐसे आदमी को काफिर कह दिया जो काफिर नहीं है तो ये कुफरी अपने ऊपर आ जाएगी, और ये कुफरी की इल्ज़ाम लेकर कुफरी के साथ वो कब्र में जाएगी तो अल्लाह उनकी हिसाब किताब करेगी। उनके साथ क्या मामला करना चाहिए ये अल्लाह ही करेगी। इसलिए ज़बान बहुत अहम चीज़ है, ज़बान को सही इस्तेमाल करो। किसी के पीछे कोई बुख्तान बुख्त न रखो मेरे दोस्तों। ईमान बहुत अहम चीज़ है, ज़रा सा कामों से ईमान निकल जाता है। ज़रा सा अकीदा आपका गलत हो सके, अपनी अकीदा ऐसे अल्लाह के बारे में कोई गलत अकीदा रखते हैं, नबी के बारे में कोई गलत अकीदा रखते हैं, उलमा किराम के बारे में कोई बुख्त रखते हैं, बस आप तो है लिबास में है मुसलमान, लेकिन आपके अंदर से सब खाली है। उलमा सितारे है, सितारे, सितारे जानते हैं, सितारे की मिसाल है। कोई ऐसे नहीं है कोई सितारा, कोई साइंटिस्ट ने एक सितारे बना देगी। एक सितारे उलमा है, उनके लिए आप कुछ भी कह दोगे, कह दोगे कि भाई ये उलमा फला है, फला है, फला है। हाँ, अपनी ज़बान को सही इस्तेमाल करो। अपने कोई अमल, किसी का अमल आपको अच्छा नहीं लगता है, छोड़ दो, ना करो, दूसरी करो, कोई बात नहीं। दूसरी के अच्छा लगता है, दूसरे को फॉलो करो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि एक आदमी एक गलत काम किया तो आपने दुश्मन बना दिया उसको। मेरे भाई दोस्तों, ये फरीक हमारे अंदर किसने पैदा किया? सबसे पहले मुनाफिकों ने मस्जिद बना के मुसलमान के अंदर फरीक पैदा किया। ऐसी चीज़ों से फरीक पैदा किया जिन चीज़ों के बारे में मुसलमान के अंदर कोई बुख्त भी नहीं कि भाई हाँ मस्जिद से कोई फरीक पैदा हो सकती है, ये सोच भी नहीं सकता था। वो मस्जिद फरीक के लिए बनाया था कि मुसलमान के अंदर फरीक पैदा हो जाए, तोड़ पैदा हो जाए, टूट जाए, मुसलमान गुलाम बन जाए। और कुछ तो उलमा, कुछ तो लिबास ऐसे है कि भाई वो आपको सबक देगी, सबक आपकी इतने लंबे लिस्ट लेके सबक लेके खड़ा हो जाएगी, फला की इत्तिबा करो, फला के पीछे जाओ, फला की ना करो, फला की करो। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि भाई हमारे मुआशरा ऐसे जुल्म में कितनी बताओगे मैं आपके सामने। उनके सामने कुरान है, सुन्ना है, हदीस है, पढ़ता है, लेकिन फिर भी अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए लोगों को अलग अलग जमात बना के अलग अलग गलत रास्ता दिखा रहे हैं। हत्ता कि लोगों को तागूत की इताअत की भी सबक देने वाला दुनिया में है। तागूत की सबक देता है कि तागूत की इत्तिबा करो। अगर वो मुसलमान हुकूमत है, वो जितने भी गलत काम करते हैं उनकी इताअत करना आपके लिए फर्ज है। ये सबक देने वाला है या नहीं? मुसलमान हुक्मरान है, वो कुफर भी करे, वो कितना बड़े भी जुल्म करे, सारे उलमा को जेल में बंद कर दे, सब इस्लाम को मिटा दे, इस्लाम के खिलाफ कानून भी बनाए, लेकिन आपके लिए फर्ज है कि इनके पीछे इत्तिबा करें, इनकी बगावत ना करें। ऐसे सबक देने वाला भी बहुत है। लिबास में है, और वो ऐसे जगह से सबक देता है जो करोड़ों लाखों लोग उनकी सबक सुनते हैं, और बहुत लोग जो उनकी बस फॉलोअर्स बन गए। मैं उनके लिए जान दे दूँ, इतनी सही अकीदा रखने वाला आलिम दुनिया में और कोई नहीं है, सच बात करने वाला है, बिल्कुल जन्नती है। आप किसी को देखना चाहते तो उनकी देख लो कि ये जन्नती है। बस उनके दिल में उनके लिए इतनी, क्योंकि उन्होंने ऐसे मीठा मीठा बात करते करते तागूत की सबक देता है, और कुरान और सुन्ना की दलील के साथ तागूत की सबक देता है कि देखो अल्लाह की नबी फरमाया अगर किसी ने मुसलमान हुक्मरान की बगावत किया वो जहन्नम में जाएगी। हदीस में है, लेकिन हदीस में यह भी बोला है कि जब मुसलमान हुक्मरान है तो इस्लाम के साथ
इस्लाम को छोड़ के कुफर को ज़्यादा तरफ, कुफर की तरफ लोगों को बुलाता है, तो उनके खिलाफ जंग करो। मेरे भाई दोस्तों, ये हमारी मुआशरा है। आज हम फारिग में हैं, इसलिए हमारे सामने कोई भी कुछ भी कह देते हैं, भाई आ जाओ हमारी जमात में आ जाओ, हम जन्नत में जा रहे हैं, हमारे पीछे खड़ा हो जाओ, लाइन लगाओ। असल में जो मेरे दोस्तों, जन्नत सिर्फ दो कामों में, इत्तबा, दो कामों में, दो चीज़ों का इत्तबा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है कि मैं जाने के बाद मैं तुम्हारे सामने दो चीज़ रख के जाता हूँ। लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा। अगर ये दो चीज़ तुम पकड़ के रखोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। वो दो चीज़ क्या है? किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल। सबसे पहले किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल बाद में है। ये नहीं कि उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनकी है। किताबुल्लाह सबसे पहले है। क्यों? ये चेंज नहीं हो सकते, तब्दील नहीं हो सकते। ज़ईफ़, मंसूब, मकरूर, हसन, सही, कुछ भी ज़रूरत नहीं इन पे। हर बात पर ईमान है कि ये हक है, अल्लाह की कलाम है। सबसे पहले अपनी अकीदा ईमान कुरान से बनाओ, अपनी जन्नत के रास्ता कुरान से तैयार करो। अगर कुरान मिल गए तो बस खामोश रहो, इसको पकड़ के रखो। वला तफर्रकू, फरीक ना बनो। अगर कुरान से आपका कोई मसला के हाल नहीं हो रहा है, यानी आपके समझ में नहीं, मसला तो हाल है, कुरान में हर चीज़ की मसला हल है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है, भाई इसका मसला क्या से हम हल करें। हर चीज़ पर अवाम की और आलिम भी हर चीज़ पर इल्म नहीं रखते। कुरान की जो आलिम है वो भी कुरान की हर चीज़ पर इल्म नहीं रखते, क्योंकि कुरान एक आसमान और ज़मीन सारी चीज़ों का ख़जाना है। कुरान हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला कुरान पे रखा है। तो कोई एक आदमी इसको हासिल कर ले पूरा पूरा, ये नहीं, नामुमकिन है। तो हो सकता है कि आप कुरान से आपके मसला हल नहीं कर पा रहे, तो अल्लाह की नबी की सुन्नत की तरफ रुजू करो कि अल्लाह की नबी की सहाबा करम की ज़िंदगी कैसे इस मसला हल किया, अल्लाह की नबी ने क्या बयान फरमाया। बस अल्लाह की सुन्नत, नबी की सुन्नत की तरफ रुजू करो। ये दो चीज़ अपनी ज़िंदगी में लाओ, कोई फारिग ना बनो, फारिग ना बनो। ये दो चीज़ अपनी ज़िंदगी में लाओ तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की नबी की वादा है कि ये मेरे साथ में रहेगी जन्नत में, ये मेरी साथ में रहेगी जन्नत में। अल्लाह के नबी फरमाता है हर कोई जन्नत में जाएगी, हर उम्मत जन्नत में जाएगी, सिवाय वो लोग जो इनकार करने वाला है। तो फरमाया या रसूलुल्लाह, कौन इनकार करने वाला है? कहते वो इनकार करने वाला है जो मेरे सुन्नत को इनकार करने वाला है, जो मेरे सुन्नत को तरक करने वाला है, जानबूझ के सुन्नत को छोड़ने वाला है, वो जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है कि भाई हमें जन्नत नहीं चाहिए। कौन जन्नत में नहीं जा रहा है? जो सुन्नत को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नत को इनकार कर रहा है कि भाई ये सुन्नत हमें ज़रूरत नहीं है। यह तो एक जमात तो हमारे अंदर अभी बहुत बड़े जमात बन रहे हैं जो अहले कुरान फारिक है। पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है। अहले कुरान कहते हैं कि भाई हम सिर्फ कुरान चाहिए, कोई हदीस नहीं चाहिए। लेकिन अल्लाह के नबी क्या फरमाया? दो चीज़, किताबुल्लाह, सुन्नत नबी। ये नहीं है कि भाई सिर्फ कुरान में आपको हर चीज़ मिलेगी, सुन्नत की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर नबी भेजने का कोई ज़रूरत क्या है भाई? नबी का क्या ज़रूरत था? अल्लाह तक किताब जिब्राइल सलाम से भेज दे सकता था, जाओ जिब्राइल लोगों को कह दो कि ये अल्लाह की किताब है। वो लोग कहता है कि भाई सुन्नत का, हदीस का कोई ज़रूरत नहीं है, कुरान ही कुरान है बस। उनका बात अच्छा है लेकिन उनकी मकसद अच्छा है, मकसद अच्छे नहीं है। वो चाहता है कि भाई नबी की उम्मत जो है नबी को छोड़ के सिर्फ कुरान को पकड़ ले, यानी नबी की अकीदा आमन्तु बिल्लाह और रसूलिही, रसूल के ऊपर ईमान फ़र्ज है। अगर एक आदमी रसूल के बारे में ज़रा सा गलत ईमान रखने वाला है वो काफिर है, उनकी कुफर ईमान है। काफिर मतलब यानी उनकी अकीदा कुफरी है। अगर वो कभी भी इससे रुजू कर ले, ईमान दोहरा ले, अल्लाह उनको माफ़ कर देगा। इसलिए दो चीज़ चाहिए, सिर्फ कुरान नहीं है। आज हमारे उधर जो है बहुत जोर ज़बरदस्ती से ये बातों को फैला जा रहा है, सिर्फ कुरान को पकड़ो, सुन्नत की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि सुन्नत जो हदीस जो है ज़ईफ़ हो जाता है, कभी मनसूख हो जाता है, कभी मगरूब हो जाता है।
कभी आसान हो जाता है, यानी इनके अलग अलग दर्जा होता है, इसलिए इसको छोड़ो बस कुरान। यह बात सबसे ज़रा सर गलत है, उम्मत को एक धोखे में लेके जाना चाहते हैं लोग। अल्लाह ताला सबको सही चीज़ पर अमल करने का तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।